Okay, so very good morning, one and all. In the previous video, we have already gone through the binary tree traversing technique. In that, we have learned about the in-order traversing technique, pre-order traversing technique, and post-order traversing technique. We have seen the examples also, how to find out the in-order, pre-order, and post-order for the given binary tree, and how to construct the binary tree from the given pre-order and in-order, and from the given in-order and post-order. So all these examples we have already seen. In the today's lecture, we will see about the threaded binary tree. Threaded binary tree we are going to see in the today's lecture. So basically, why the concept of threaded binary tree is invented and what is the meaning of threaded binary tree? Prior to that, we have already learned about the binary tree representation technique. In that, we have already seen how to represent the binary tree into a memory. There are two different ways to represent the binary tree into a memory, and these techniques are array representation technique and linked list representation technique. Our binary tree will be represented in the memory using the two different types of technique. One is array representation technique and another is linked list representation technique. So in case of linked list representation technique, there is one drawback. And that drawback is in linked list representation technique, if there is a leaf node or any node, if the particular node not containing a left child or not containing a right child or not containing a left and right child both, in that scenario, the particular node contains a null field. Here you can see in this particular example, you can see over here on your screen, suppose your B node, that particular B node contains only one child, that means D. The B node contains a child, call it as D. But B node never contains a child. यहाँ पे right child कुछ भी नहीं है, that means there is a null. यहाँ पे क्या है, null है. Similarly, happened with D also, that D node is a leaf node, and leaf node never contains a child. So D is a leaf node, so its left child is null as well as its right child is also null. Same case with E also. E is also a leaf node, so E left child is null and E right child is also null. Similarly with F is having both child, but in case of I, so I is also having a left child null and right child null. That means in shortly we can say, in case of a binary representation technique using linked list representation, so the particular node contains a left child and right child null. That means the particular node never contains a particular child, that is left child or right child. So if that particular node not containing any child, it means that that particular field going to be null. वो फील्ड क्या होता है, नल होता है. अगर पर्टिकुलर नोड को लेफ्ट साइड नहीं है या फिर राइट साइड नहीं है, तो वहां पे हम लोग क्या स्टोर करते हैं, नल स्टोर करते हैं. सो दैट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ मेमोरी वेस्टेज प्रॉब्लम. यानी ये भी एक मेमोरी वेस्टेज का प्रॉब्लम है. दैट मींस वी आर स्टोरिंग नल वैल्यू instead of putting any sort of value. So there is a memory wastage problem if the particular node not containing any left child or not containing any right child or not containing left and right both. So in that scenario, we are putting null value. So there is a memory wastage problem. To recover this concept or to recover this drawback of memory wastage, the concept of threaded binary tree is invented. Now, so basically what is a threaded binary tree? So threaded binary tree is a simple binary tree, but they have a speciality that null pointers of a leaf node of the binary tree is set to the in-order predecessor or in-order successor. It means that what? In case of a threaded binary tree, okay, so threaded binary tree, it is just a simple of binary tree, which will be represented with the help of list representation or with the help of linked list representation. We are going to represent a threaded binary tree. So the particular node contains a null child. That means if the particular node is there and that node is not containing a left child or node is not containing the right child. So instead of putting null value, like I have shown you in case of a linked list representation,
diagrammatically. So what we have to do, if the particular node not containing left child or right child, so that particular node not containing a null value, वहां पे हम लोग null put करेंगे क्या, नहीं put करेंगे. So instead of putting null, that particular pointer or that particular node contains the, or that particular node that link with the predecessor as well as the successor. It means that suppose you can say here in the previous example, you can see here. So now if that B contains a null child in the right position, that B contains the left child, आपके पास B जो node है, it is having a left child, okay, but B is not having the right child, it is having a null. So instead of putting a null value, so if your right child is null, so it will always point to its predecessor. Sorry, it will point to its successor, predecessor and successor. प्रीडिसर का मतलब होता है दैट पर्टिकुलर नोड, उस नोड के पहले आने वाला नोड, एंड सक्सेसर का मतलब होता है उस नोड के बाद में आने वाला नोड. बट व्हेन वी नीड टू यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड मींस वी हैव टू पॉइंटिंग, दैट मींस इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ नल वैल्यू व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ पे अगर बी के पास राइट चाइल्ड नहीं है, सो ये राइट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पर हम लोग नल पुट नहीं करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग नल, व्हाट इफ बी राइट चाइल्ड इज नल, सो इट विल पॉइंट्स टू इट्स सक्सेसर, बी के बाद में आने वाला नोड. ठीक है, इफ द लेफ्ट चाइल्ड इज नल, अगर आपका लेफ्ट चाइल्ड नल होता है सो इट विल पॉइंट टू इट्स प्रीडिसेसर. दैट मींस सिंपली सपोज इफ देयर इज एन डेटा, सपोज यहाँ पे कुछ डेटा है आपका, कंसीडर इट कि आपके पास लेफ्ट चाइल्ड नहीं है. सो लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ पे आप नल पुट नहीं करेंगे, इट विल पॉइंट टू इट्स प्रीडिसेसर, यानी ये नोड के पहले आने वाला नोड, ये नोड के पहले आने वाला नोड को ये पॉइंट करेगा, इस नोड के पहले आने वाला नोड जो भी होगा उसको पॉइंट करेगा. एंड सपोज इफ राइट चाइल्ड इज नल, यहाँ पे राइट चाइल्ड अगर नल होगा सो इट विल पॉइंट टू इट्स सक्सेसर, इस नोड के बाद आने वाला नोड उसको पॉइंट करेगा. बट when your tree will traverse in a in order traversing method, when your tree will traverse in a in order manner, so that particular thread, ये जो आप इसको thread बोलते हैं, ये that means it is point to the predecessor, and that if r child is null it is point to the successor. ठीक है, अगर लेफ्ट चाइल्ड नल होगा तो उस पर्टिकुलर नोड से आने वाले पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा. इफ द राइट चाइल्ड इज नॉट देयर, सो वो किसको पॉइंट करेगा, उसके सक्सेसर को. प्रीडिसेसर मतलब बिफोर एंड सक्सेसर मतलब आफ्टर. दैट मींस उस नोड के पहले आने वाला नोड दैट मींस प्रीडिसेसर, एंड उस नोड के बाद में आने वाला नोड दैट मींस अ सक्सेसर. Okay, but when this technique, when this particular fundamentals you are going to use, when your tree will be traversed in a in order method, so that thread is called as an in order tree. इस thread को क्या बोला जाता है, in order thread बोला जाता है. इस thread को क्या बोला जाता है, in order thread बोला जाता है. So in this example, now if you will find out the in order of this tree, अगर इस tree का आप in order निकालते हो, ठीक है, so अगर ये tree का in order निकालते हो, so in order algorithm क्या बोलता है, so always we need to visit the left subtree. पहले आपको left subtree के पास जाना है, then we have to visit the root node, and then after we have to go to the right subtree. Left, root and right. This is the process. These 3 steps you need to follow. So now अगर suppose ये particular जो given tree है, ये tree का अगर मैं in order निकालता हूं, so ये particular tree का in order क्या आएगा. So first of all there is a D. So suppose you can see over here. Okay, now so A is a always start with a root node. So A is a root node. हमें root चाहिए क्या, नहीं, पहले हमें left चाहिए. left के पास क्या है, B, but B is also root node क्योंकि इससे एक child है. So फिर we have to go to left. left में क्या है, D. So first of all we have to visit D. We have to visit D. ठीक है, after that left हो गया, right left हो गया. left होने के बाद root क्या है, root B है. D का root क्या है, B है. So D का root B हमने visit कर लिया. ठीक है, आफ्टर दैट बी के बाद राइट कुछ है क्या, नहीं. ठीक है, सो ए का लेफ्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया. लेफ्ट होने के बाद राइट में रूट में क्या है, रूट में क्या है, ए है. सो वी हैव टू राइट ए, वी हैव टू विजिट ए. ठीक है, आफ्टर दैट ए के बाद राइट पार्ट में क्या है, सी, बट सी इज अ रूट नोड. हमें रूट चाहिए क्या, नहीं, पहले हमें क्या चाहिए, लेफ्ट. तो लेफ्ट में क्या है, ई. सो वी नीड टू विजिट ई, वी नीड टू विजिट ई. आफ्टर दैट ई हो गया. ई के बाद ई का रूट क्या है, सी. सो वी नीड टू विजिट सी.
हमने सी विजिट कर लिया। आफ्टर सी के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, एफ के पास, ठीक है, बट एफ इज ऑल्सो रूट नोड, बट रूट चाहिए क्या हमें, नहीं हमें क्या चाहिए, लेफ्ट, लेफ्ट में क्या है, जी है, लेफ्ट में क्या है, जी है, ठीक है। आफ्टर दैट फिर जी का राइट, जी का रूट क्या है, एफ है, सो वी नीड टू विजिट एफ। आफ्टर दैट एफ के बाद राइट में क्या है, उसके आई है, सो वी नीड टू विजिट आई। सो दिस इज एक्चुअली प्री, दिस इज एक्चुअली इन ऑर्डर। ये जो ट्री गिवन है उसका आपने इन ऑर्डर निकाल लिया। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे हियर यू कैन सी, नाउ ए के पास दोनों चाइल्ड है, नो इश्यूज। बी के पास लेफ्ट चाइल्ड है बट राइट चाइल्ड नहीं है, बी के पास लेफ्ट चाइल्ड है बट राइट चाइल्ड नहीं है, तो ये कहां पे पॉइंट करेगा, सो बी के बाद आने वाले नोड, दैट मींस इफ द राइट चाइल्ड इज नल, इफ द राइट चाइल्ड इज नल, सो यू हैव टू पॉइंट टू इट्स सक्सेसर। सो बी के बाद आने वाला नोड क्या है, सो बी के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सो यहाँ से यहाँ पे नल न रहते हुए यहाँ पे किसका एड्रेस रहेगा, इट विल पॉइंट टू ए, ये इस तरीके से पॉइंट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद बी का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। नाउ यू कैन सी डी के पास लेफ्ट भी नहीं है और राइट भी नहीं है, डी के पास लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है, सो लेफ्ट नहीं है, सो यहां से ये किसको पॉइंट करेगा, सी, डी के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो डी के पहले कुछ आ रहा है क्या, इफ द लेफ्ट चाइल्ड इज नल इट इज पॉइंटेड प्रीडिसर, वो कहां पे पॉइंट करेगा, उसके प्रीडिसर को पॉइंट करेगा। सो डी के पहले कुछ आ रहा है क्या, देखिए इनफिक्स सॉरी इन ऑर्डर में देखिए डी के पहले कुछ है क्या, नहीं, डी से स्टार्टिंग ही हो रहा है, तो डी के पहले कुछ नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, सो आई विल टेल यू कि ये कहाँ पॉइंट करेगा, ठीक है, ऐसे छोड़ दिया। फिर डी का राइट भी नल है, डी का राइट नल है, तो ये कहाँ पॉइंट करेगा, इसके प्रीडिसर को। तो डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में क्या आ रहा है, इमीडिएटली नेक्स्ट टू बी क्या है, नेक्स्ट टू डी क्या है, बी है, सो इट विल पॉइंट टू बी, सो ये किसको पॉइंट करेगा, ये बी को पॉइंट करेगा, ये बी को पॉइंट करेगा, ठीक है। नाउ फिर सी के पास जाते हैं, सी इज हैविंग बोथ द चाइल्ड ई एज वेल एज एफ, राइट, लेफ्ट एज वेल एज राइट। नाउ अभी ई को देखते हैं, लेफ्ट भी नहीं है और राइट भी नहीं है, सो लेफ्ट नहीं है तो कहां पॉइंट करेगा, लेफ्ट नहीं है तो उसके प्रीडिसर को पॉइंट करेगा। ई के पहले क्या आ रहा है, ई के पहले क्या आ रहा है, ई के पहले यहाँ पे ए आ रहा है, सो इट विल पॉइंट टू ई, दैट मींस यहाँ के लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ए का एड्रेस रहेगा, दैट मींस ये ए का एड्रेस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। उसका राइट भी नल है, सो राइट विल पॉइंट टू द सक्सेसर। ई के बाद में आने वाला क्या है, ई के बाद में क्या आ रहा है, सी आ रहा है, so we need to point to C, we need to point to C, so यहां से हम लोग किसको पॉइंट करेंगे, C को पॉइंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नाउ यू कैन सी F, F के पास दोनों चाइल्ड है, नाउ यू कैन विजिट G, G के पास दोनों चाइल्ड नहीं है, तो G के पहले क्या आ रहा है, G के पहले C आ रहा है, G के पहले यहाँ पे C आ रहा है, so we have to visit, we have to point to C, so ये G का जो लेफ्ट नल है वो किसको पॉइंट करेगा, C को पॉइंट करेगा, यानी यहाँ पे आएगा। आफ्टर दैट जी का राइट भी नल है, तो इट विल पॉइंट टू द सक्सेसर, तो जी के बाद में क्या आ रहा है, जी के बाद में एफ आ रहा है, सो इट विल पॉइंट टू एफ, तो यहां से निकल के आप एफ को पॉइंट करोगे, ठीक है। वैसे ही ये आई का लेफ्ट साइड नल है, दैट मींस इट विल पॉइंट टू इट्स प्रीडिसर, सो आई के पहले क्या आता है, एफ, सो इट विल पॉइंट टू एफ, तो ये एफ को पॉइंट करेगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आई का राइट भी नल है, सो इट विल पॉइंट टू इट्स सक्सेसर, तो आई का सक्सेसर कोई है क्या, नहीं है, आई का सक्सेसर कोई भी नहीं है, दैट मींस आई के बाद कुछ आ रहा है क्या, नहीं। सो हमारी ट्री में इन दिस पर्टिकुलर ट्री वी हैव अ टू पॉइंटर, ऐसे दो सिचुएशन है आपके पास, ऐसे दो पर्टिकुलर नोड है, एक को प्रीडिसर नहीं है तो एक को सक्सेसर नहीं है। आपने देखा कि ये जो डी है, डी के पहले कुछ भी नहीं आता है और आई के बाद में कुछ भी नहीं आता है, दैट मींस डी को प्रीडिसर नहीं है और आई को सक्सेसर नहीं है, ठीक है। सो फिर ये कहां पे पॉइंट करेंगे, ये कहां पे पॉइंट करेंगे, ये पर्टिकुलर पॉइंटर एक स्पेसिफाइड नोड को पॉइंट करेंगे, स्पेशल नोड को पॉइंट करेंगे, ठीक है। सपोज मान के चलते कि दिस वन इज अ स्पेशल नोड, ये आपका स्पेशल नोड है, सो एक जो आपके दो पॉइंटर, जो आपके दो नोड है, एक को प्रीडिसर नहीं है और एक को सक्सेसर नहीं है, सो इट विल बी पॉइंट टू द स्पेशल नोड एंड दैट पॉइंटर इज नोन एज एन डैंगलिंग पॉइंटर, इसको बोला जाता है डैंगलिंग पॉइंटर। इसको क्यों डैंगलिंग बोल रहे हैं, बिकॉज द पर्टिकुलर नोड is not having the predecessor and the particular node is not having the successor, that means देखिए डी के पहले कुछ भी नहीं आने वाला है, डी के पहले आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है और आई के बाद आपको इधर कुछ नहीं मिलने वाला, यानी डी को प्रीडिसर नहीं है और आई को सक्सेसर नहीं है, फिर ये किसको पॉइंट करेगा, ये एक स्पेशल नोड को पॉइंट करेगा, और किसके थ्रू पॉइंट करेगा, ये डैंगलिंग पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करेगा। ये जो पॉइंटिंग होता है उसको बोला जाता है डैंगलिंग पॉइंटर, दैट इज इट विल पॉइंट टू द स्पेशल पॉइंटर, सो दैट इज नोन एज threaded binary tree. So we can see in threaded binary tree, in threaded binary tree
इन थ्रेडेड बाइनरी ट्री द नोड इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। आपके थ्रेडेड बाइनरी ट्री का नोड 5 पार्ट में डिवाइड होता है। आपने लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री देखा जिसमें एवरी नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द लेफ्ट चाइल्ड एड्रेस, बीच में आपका डेटा होता है, उसके बाद उसका राइट चाइल्ड का एड्रेस होता है। द नोड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, आपका बाइनरी ट्री का जो नोड है इन केस ऑफ लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। 3 पार्ट में आपका नोड डिवाइड होता है। सो आपका मिडल में डेटा रहता है, यहाँ पे सपोज आपका डेटा रहेगा, तो यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहता है और यहाँ पे आपका राइट चाइल्ड का एड्रेस रहता है, राइट। बट इन केस ऑफ अ थ्रेडेड बाइनरी ट्री the node structure is divided into 5 parts. The node structure divided into 5 parts. The middle part contains always the data. बीच में आपका क्या रहेगा? Always we need to store the data in the middle part. ठीक है। After that left में क्या रहेगा? उसके left child का एड्रेस, right में क्या रहेगा? उसका right child का एड्रेस। और यहाँ पे क्या रहेगा? two more fields are there, left tag and right tag. That means the thread. यहाँ पे क्या रहेगा? Left tag and right tag में लेफ्ट टैग का एड्रेस और राइट टैग का एड्रेस, प्रीडिसर का एड्रेस एंड सक्सेसर का एड्रेस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द थ्रेडेड बाइनरी ट्री नोड स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। मिडल में डेटा रहेगा, लेफ्ट चाइल्ड में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, राइट चाइल्ड में राइट चाइल्ड का एड्रेस, एल टैग और आर टैग, लेफ्ट टैग और आर टैग जिसमें आपके थ्रेड जो है उसका एड्रेस रहेगा। दैट मींस it will contains the address of its predecessor and the successor. So that means the threaded binary tree. So you can see programmatically we can see the node structure of threaded binary tree over here. Okay, so we have defined a enumerated data type called as boolean, जिसमें false की value 0 है and true की value 1 है. If the thread is there, that means the value is 1. If the thread is not there, that means value is 0. अगर thread आया है so आप उसको 1 put करोगे। अगर if the thread is not there, that means we have to put the 0. Okay, now we have to create the node structure. So struct node, we have created the node structure. So after that enum boolean tag, that is the first is left tag, then left child का address, then बीच में रहेगा आपका data, then right child का address and then right tag. So जो previously आपको यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे, so l tag, l child का address, then data, then right child का address and right tag. Okay, so now now you can see, so there is a structure of your node structure is given over here. So यहाँ पे एक node structure इस तरीके से आप लोग structure form करते हैं and there is an now you can say the threaded binary tree divided into two types. The first one is single thread and second is double thread. Single thread क्या होता है, double thread क्या होता है? So single thread यानी क्या होता है? Here only the right null pointer are made to point to the each in order successor. That means single thread का मतलब क्या होता है? If the right child is null, so it will point to its successor. वो कहाँ point करेगा? उसके successor को point करेगा. That is just here in the example. Suppose इसका right child अगर यहाँ पे null है, so it will point to its successor. ये इसको successor को point करेगा. Left child अगर null है तो उसको आपको left child को null ही रखना है. That means a single threaded binary. Single threaded binary tree, it means that the particular node is having left child is null, so put it null only. If the right child is null, right child अगर null होगा तो वो उसके successor को point करेगा, but in double threaded binary tree, if when left child is null, so it is point to its predecessor. If the right child is null, so it will point to its successor. यानी अगर आपके पास लेफ्ट चाइल्ड अगर null होगा तो उसके प्रीडिसर को पॉइंट करेगा, यानी यहां से आने वाले पहले नोड को पॉइंट करेगा. एंड इफ द राइट चाइल्ड इज null, so it will point to its successor. That means a double thread. If the left child is null, so it will point to its predecessor. If the right child is null, it is point to its successor. ठीक है, that means a double threaded binary tree. So likewise we have to connect the left child and right child pointers or tags to its predecessor and the successor. So here is an example. Here is the diagram. You can see in the first tree it is a single thread. If the right child is null, so it is point to its successor. देखिए इसके successor को point किया है. इसका अगर right child नहीं होगा तो इसके successor को point करेगा. इसका right child नहीं है तो ये successor को point करेगा. इसका right child नहीं है तो ये इसके successor को point करेगा. But in double threads, if the left and right both are null, so it will point to its predecessor and successor.
For example, now you can see one is having the one is having the successor 3. ठीक है, now वन को प्रीडिसर नहीं होगा, so it will point to the dangling pointer. एक स्पेशल नोड को पॉइंट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं dangling pointer. It is a special node where your node contains the left child null, so that particular node contains node joined to the particular specific node with the help of dangling pointer. Now, suppose the 5 is a leaf node, 5 is not having the left child as well as right child, so it is pointing to its predecessor. इसका 5 का predecessor 3 है और 5 का successor क्या है 6 है. So likewise we have to connect the node with the help of threads. That threads is called as an in-order threads. So one advantage of threaded, so you can see here it's an example of threaded binarity. So we have seen the in-order traversing of this particular tree is B, A, G, E, D, F, C. You can see. Okay. So this is actually a in-order sequence of this tree. Okay. So now B का left null है, so we will put it as a null or it will point to the specific pointer with the help of dangling pointer. ठीक है. So यहाँ पे B का आपका left pointer null है. ठीक है. So B के पहले कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, so ये कहाँ point करेगा फिर? So it will point to the special node. That special node will be connected with the help of pointer known as a dangling pointer. एक स्पेशल नोड क्रिएट होगा जिसको बी का जो लेफ्ट नल है वो उसको पॉइंट करेगा, लेकिन बी का राइट नल है तो किसको पॉइंट करेगा, सक्सेसर को. तो बी का सक्सेसर कौन सा है, बी के पहले क्या आता है, ए आता है, सॉरी बी के बाद में क्या आता है, ए आता है, तो बी के बाद में ए आता है तो ए को पॉइंट करेगा. ठीक है. आफ्टर दैट वी कैन सी ए के पास राइट में देखिए सी के पास लेफ्ट है, राइट नहीं, राइट में सी के पास राइट नहीं, तो ये इसको आप छोड़ दो. ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, स्पेशल नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि सी के बाद कुछ भी नहीं है. देखिए सी लास्ट है, सी के बाद कुछ नहीं है, सो सी का राइट पॉइंटर जो है वो कहाँ पॉइंट करेगा, स्पेशल पॉइंटर को पॉइंट करेगा, स्पेशल नोड को पॉइंट करेगा. दैट पॉइंटर इज नोन एज डैंगलिंग पॉइंटर. ठीक है. आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे सी के बाद डी के पास, देखिए डी के पास लेफ्ट राइट दोनों है, तो ई के पास लेफ्ट है राइट नहीं है, सो ई का राइट किसको पॉइंट करेगा, इसके सक्सेसर को. ई के बाद क्या आता है, ई के बाद डी आता है. ठीक है. आफ्टर दैट ई के पास ई का लेफ्ट चाइल्ड है आपका जी, तो जी के पास लेफ्ट नहीं है राइट नहीं है, तो जी किसको पॉइंट करेगा, इसके प्रीडिसेसर सक्सेसर को. तो जी के पहले क्या आता है, देखिए इन ऑर्डर में जी के पहले क्या आता है, ए आता है. तो देखिए यहाँ पे एक थ्रेड निकला है जो किसको पॉइंट कर रहा है, ए को, और जी के पास राइट पॉइंटर नहीं है तो ये किसको पॉइंट करेगा, इसके सक्सेसर को. तो ये इसने ई को पॉइंट करेगा, ई को पॉइंट किया हुआ. सो इट मींस दैट, so the symbol funda is there. If the left child is null, so it will point to its predecessor. उसके पहले आने वाले नोड को पॉइंट करेगा. If the right child is null, अगर उसके पास right child नहीं होगा तो किसको पॉइंट करेगा, उसके बाद वाले आने वाले नोड को. ठीक है. That means the next नोड को वो पॉइंट करेगा. That means a threaded binarity. So now we can see what is the advantage of threaded binarity is it will consume the memory space, or sorry, it is not consume the memory space, it is recover the memory wastage problem occur in the simple linked list representation of a binarity. So that will be recovered by threaded binarity. And one more thing is that one more major advantage of this threaded binarity is, so it is here we can, in case of a linked list representation or any binarity, once you traverse, आपने ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया तो आप बैक टू द रूट नोड वापस नहीं जाओ. यानी आप ए से ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट किए, ए से आपने ट्रैवर्स किया, ए से ए के बाद बी के पास गए, ए के बाद सी के पास गए, आप जा सकते हो. ठीक है. बट बैक टू मैं बी के पास हूँ, बी से मैं फिर से ए के पास नहीं जा पाऊंगा. इन केस ऑफ नॉर्मल ट्री, आप अगर नॉर्मल ट्री देखते हो तो सपोज नॉर्मल ट्री में क्या होता है कि सपोज मैंने ए से ट्रैवल किया, बी के पास आया. ठीक है. एंड आई हैव टू गो फ्रॉम बी टू समवेयर एल्स. ठीक है. बट आई डोंट हैव टू गो बैक टू बी फ्रॉम ए. यानी बी से फिर से मैं वापस ए के पास नहीं जा सकता, बैक ट्रैक नहीं पॉसिबल. इन केस ऑफ नॉर्मल ट्री, नॉर्मल बाइनरी ट्री, द बैक ट्रैकिंग इज नॉट पॉसिबल. दैट मींस ए से आपने ट्रैवर्सिंग करना स्टार्ट कर दिया, आप आगे बढ़ गए, सो यू कैन नॉट नेवर बैक टू द फर्स्ट पोजीशन वंस अगेन. यू कैन नॉट विजिट रूट अगेन. आप रूट को फिर से विजिट नहीं कर पाओगे. ठीक है. सो थ्रेडेड बाइनरी ट्री इज अ कांसेप्ट वेयर यू कैन विजिट अ रूट अगेन. दैट मींस सर्कुलरली आप सर्कुलर मैनर में आप घूम सकते हो. जैसे देखिए आप जी के पास आए, सपोज इफ यू आर ऑन द जी, आप जी के पास हो. ठीक है. तो जी के पास इसका टैग है, तो इस टैग के थ्रू आप डायरेक्टली ए के पास जा सकते हो. देखिए रूट के पास जा सकते हो. दैट इज भले आप डेप्थ में चले गए, डेप्थ में जाने के बाद फिर से आप आपके रूट के पास जा सकते हो. दैट इज सर्कुलर मैनर में आप घूम सकते हो. सो दैट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ थ्रेडेड बाइनरी. होप एवरीबॉडी क्लियर विद द थ्रेडेड बाइनरी.
Now we will see the AVL tree. So basically what it means AVL tree. So AVL tree is a height balanced binary tree. It is called as a height balanced binary tree. By the name as AVL tree. So AVL tree, it is invented by Adelson Landis. These are the name of the author, or we can say these are the name of the inventors who invented the AVL tree. AVL. Okay, Adelson Vilsky Landis. That AVL tree, it is also called as an height balance tree. Why the AVL tree concept is invented, or why the height balance tree concept is invented? In case of a binary search tree, when you insert the node or when you delete the node from the binary search tree, your tree will get imbalanced. आपका ट्री क्या हो जाता है? इम्बैलेंस्ड हो जाता है ड्यू टू इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ द नोड इन बाइनरी सर्च ट्री. फॉर एग्जांपल, आपके पास बाइनरी सर्च ट्री है, आपने उसमें डेटा इंसर्ट किया या फिर डिलीट किया, तो आपका ट्री इम्बैलेंस हो जाएगा, उसके हाइट में चेंज होगा. अब ये ट्री बैलेंस है या इम्बैलेंस है? हाउ वी आर गोइंग टू say the particular tree is a balanced tree or particular tree is a imbalanced tree? In case of a normal skewed tree, आपका skewed tree होता है या फिर आपका right skewed tree है, left skewed tree है, pathological tree है आपका. So इसमें क्या होता है? Due to the insertion and deletion, your tree height will get changed. ठीक है? और जिस particular tree में आपका depth of the tree is very high, जिस ट्री का height बहुत ज्यादा होता है, and if the nodes are very less, so in that particular situation, what happens? It will consume a lot of memory. If the tree is not balanced, as well as it will take a time to search the particular data, or it will take the time to insert or delete the particular data into that particular sort of tree. So to recover these things, the concept of AVL tree was invented. So what does the AVL tree or height balance tree? Due to the insertion and deletion, आपके ट्री का बैलेंस जो होता है, आपके ट्री का हाइट जो होता है, इम्बैलेंस्ड होता है. वो हाइट को बैलेंस कैसे करते हैं? या फिर हाउ यू कैन से दैट पर्टिकुलर ट्री इज इम्बैलेंस और पर्टिकुलर ट्री इज बैलेंस्ड? सो हाउ यू कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर ट्री इज बैलेंस और इम्बैलेंस? सो for the particular tree, you need to find out the balance factor for every node. आपको हर एक नोड के लिए बैलेंस फैक्टर निकालना होता है. Then how to find out the balance factor for every node? हर एक नोड के लिए आप बैलेंस फैक्टर कैसे निकालते हो? सो बैलेंस फैक्टर का फॉर्मूला होता है बैलेंस फैक्टर विच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री. पर्टिकुलर नोड की लेफ्ट हाइट कितनी है माइनस राइट हाइट कितनी है, जो भी आपको सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो भी आपको नंबर मिलेगा, दैट इज द बैलेंस फैक्टर. नाउ इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, इन दिस पर्टिकुलर ट्री, यू कैन सी द 100 नोड. That node, the root node is having the value 100. अभी 100 के लिए बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 100 के लिए बैलेंस फैक्टर क्या होगा? इसका 100 का लेफ्ट हाइट देखिएगा. लेफ्ट हाइट कितना है? 1, ये सेकेंड और ये थर्ड, यानी आपके 100 जो नोड है उसका लेफ्ट हाइट कितना है? 3 है. लेफ्ट हाइट कितना है? 100 का 3 है. उसका राइट हाइट देखिए, राइट हाइट कितना है? 1 and 2, यानी कितना लेवल है? 100 के बाद आप अगर राइट साइड में जाते हो तो कितना लेवल है? सो लेवल, देयर इज फर्स्ट लेवल एंड देयर इज सेकंड लेवल. दैट मींस 100 का लेफ्ट हाइट कितना है? 3 है और राइट हाइट कितना है? 2 है. दैट इज 3 minus 2. सो आपके 100 वाला जो नोड है उसका बैलेंस फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ. बैलेंस फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ. नाउ 50 का हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ये 50 का बैलेंस फैक्टर निकालते हैं. तो 50 का बैलेंस फैक्टर कितना होगा? 50 का लेफ्ट बैलेंस फैक्टर कितना है? लेफ्ट हाइट कितना है? 1 है. ओनली 1 चाइल्ड इज देयर. बट वही अगर 50 का मैं राइट सब ट्री देखता हूँ, राइट हाइट देखता हूँ, सो हाइट इज 1 2. दैट मींस कितनी लेवल है 50 के लिए? राइट साइड में 2 लेवल्स आर देयर. दैट इज 1 minus 2. सो 1 minus 2 विल गेट -1. सो 50 का हाइट कितना हुआ? -1 हुआ. सिमिलरली 25 का देखते हैं. 25 नोट के लिए लेफ्ट सब ट्री पूछेगा नहीं है, राइट सब ट्री पूछेगा नहीं है, तो उसका क्या हुआ? 0 हुआ. अभी 75 का देखते हैं. 75 में लेफ्ट
साइड में लेवल कितना है, ओनली वन लेवल इज देयर, और राइट साइड में कितना है, ओनली वन लेवल इज देयर, सो 1 - 1 0, तो आपके 75 का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ, 0 हुआ। 65 का कितना आएगा, 65 में लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है, दैट मींस द बैलेंस फैक्टर इज 0। वैसे 85 में बैलेंस फैक्टर क्या आएगा, 0 आएगा। अभी 150 का बैलेंस फैक्टर निकालिए, 150 का बैलेंस फैक्टर अगर देखते हैं तो लेफ्ट साइड में कितना लेवल है, ओनली वन लेवल इज देयर, हाइट इज ओनली वन, एंड 150 का राइट साइड में ओनली वन हाइट इज देयर, सो 1 - 1 0, सो 150 का बैलेंस फैक्टर 0 हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट 125 का 0 है, 175 का 0 है, दैट मींस एवरी नोड का अगर बैलेंस फैक्टर आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द कांसेप्ट ऑफ ABL ट्री इज फॉर एवरी नोड द बैलेंस फैक्टर शुड बी 1 0 एंड -1। आपका जो बैलेंस फैक्टर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या फिर -1 होना चाहिए। आपका ट्री बैलेंस है, ये आप कैसे बोलोगे, when your balance factor for every node is within 1 0 and -1। आपका जो बैलेंस फैक्टर होगा हर एक नोड का वो क्या होना चाहिए, 1 0 या फिर -1, ये तीनों में से कोई भी होना चाहिए। आइदर आपके पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर -1 हो सकता है। अगर आपके ट्री का बैलेंस फैक्टर 1 0 या फिर -1 है, दैट मींस आपका वो पर्टिकुलर ट्री क्या है, बैलेंस ट्री है। यानी ये पर्टिकुलर जो पूरा नोड्स जो है, ये पूरे जो नोड्स है, ये पूरे नोड जो है, ये पूरे नोड का बैलेंस फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 0 या फिर -1 होना चाहिए। अगर आपका ये जो पूरा ट्री है, ये पूरे ट्री का जो हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर 1 0 -1 है, दैट मींस ये ट्री आपका बैलेंस्ड है। ये ट्री इम्बैलेंस कब होगा, अगर आपके ट्री में एक भी नोड का, इफ द सिंगल नोड इज हैविंग द बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ द रेंज, दैट इज 1 0 -1 के अलावा कुछ है, इट मींस दैट ये ट्री आपका इम्बैलेंस्ड है। एवरीबॉडी गॉट इट, बैलेंस का मतलब क्या हुआ, द every node of a particular tree is having the balance factor within the range, that means 1 0 or -1. But if the particular node is having the balance factor out of the range 1 0 -1 के अलावा कुछ है, that means वो tree आपका imbalance है। Got the concept of imbalanced tree and balanced tree? Okay, balance means the all nodes having the balance factor 1 0 and -1 only. But tree is imbalanced, that means the node, particular node of a tree is having the balance factor out of the range, that means 1 0 -1 के अलावा कुछ है, तो वैसे ट्री को आप क्या बोलोगे, इम्बैलेंस बोलोगे। नाउ अगर आपका ट्री इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करना होता है। इफ द ट्री इज इम्बैलेंस, सो यू हैव टू बैलेंस दैट ट्री। अभी इम्बैलेंस ट्री है, ये आपको पता है कि पर्टिकुलर नोड आपके ट्री में अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर 1 0 -1 के अलावा कुछ आता है, दैट मींस वो ट्री आपका इम्बैलेंस है। फिर इम्बैलेंस ट्री को बैलेंस कैसे करेंगे, इम्बैलेंस ट्री को बैलेंस कैसे करना है, सो वी नीड टू फॉलो द 4 स्टेप, वी नीड टू फॉलो द 3 स्टेप। ओके, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट द बैलेंस फैक्टर। जो भी आपका ट्री है उसमें आपने उस पर्टिकुलर ट्री में आपने डेटा इंसर्ट किया या फिर डिलीट किया, जिसके कारण आपका ट्री क्या हुआ है, इम्बैलेंस्ड हुआ है। उस अगर ट्री आपका इम्बैलेंस्ड हुआ है ड्यू टू द insertion and deletion operation performed on the tree, your tree is imbalanced, your tree is imbalanced, so how you are going to balance that tree, आप उस ट्री को बैलेंस कैसे करोगे, the very first step is first of all you have to compute the balance factor, you have to find out the balance factor for every node। जो भी ट्री है उसके हर एक नोड का आपको क्या करना है, हर एक नोड का आपको बैलेंस फैक्टर निकालना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बैलेंस फैक्टर आ जाने के बाद इफ यू फाइंड द बैलेंस फैक्टर फॉर एवरी नोड, ठीक है, अगर आपके सारे नोड के बैलेंस फैक्टर 1 0 -1 है, दैट मींस ट्री आपका बैलेंस है। अगर 1 0 -1 के अलावा एक भी नोड का बैलेंस फैक्टर चेंज होता है तो आपका वो ट्री क्या हो गया, इम्बैलेंस्ड हो गया, वो ट्री आपका इम्बैलेंस्ड हो गया। सो वो ट्री को बैलेंस करने के लिए फिर सेकंड स्टेप क्या बोलता है, यू हैव टू फाइंड आउट द पाइवोट वैल्यू। लिसन वेरी केयरफुली, यू हैव टू फाइंड आउट द पाइवोट वैल्यू। पाइवोट इट इज जस्ट अ नेम, हियर वी हैव यूज्ड ए इज नथिंग बट अ पाइवोट वैल्यू। पाइवोट मींस व्हाट, जहां पे आपने इंसर्शन किया है या फिर जहां पे आपने डिलीशन किया है, वहां से नियरेस्ट नोड यू हैव टू फाइंड आउट, उस पर्टिकुलर नोड से, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर नोड यू हैव टू फाइंड आउट द नियरेस्ट नोड जिसका बैलेंस फैक्टर 1 0 -1 के अलावा समवन एल्स है। दैट मींस लिसन वेरी केयरफुली, जो आपने नोड इंसर्ट किया है या फिर जो आपने नोड डिलीट किया है जिसके कारण आपका ट्री इम्बैलेंस्ड हुआ है, ठीक है, इम्बैलेंस्ड हुआ है, तो उस पर्टिकुलर नोड से आप ऐसा नोड आइडेंटिफाई करो जिसका बैलेंस फैक्टर 1 0 -1 के अलावा समथिंग एल्स है। दैट मींस समवन है पर्टिकुलर नोड इज हैविंग द 2 बैलेंस फैक्टर, 3 बैलेंस फैक्टर, 4 बैलेंस फैक्टर, व्हाटएवर,
बट 10 -1 के अलावा नियरेस्ट वन, दैट मीन्स पर्टिकुलर जो ट्री है आपका, उस ट्री में जहां पे आपने नोड इंसर्ट किया है वहां से आपको नियरेस्ट नोड देखना है जिसका बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ है दैट मींस पहले 10 - 1 था, अभी 2 हुआ है, अभी 3 हुआ है, अभी 4 हुआ है, तो ऐसा नोड आपको ढूंढना है। दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द पाइवोट वैल्यू। एक वंस यू फाइंड आउट द पाइवोट वैल्यू, सेकंड थिंग इज दैट you have to perform the rotations. The final step is that you have to find out you have to perform the rotations. अभी rotations कितने टाइप्स के होते हैं? There are 4 types of rotations: left to left rotations, right to right rotation, left to right rotations, and right to left rotation. These are the 4 rotations you need to perform. अभी चारों में से कौन सा रोटेशन परफॉर्म करना है? हाउ यू विल फाइंड आउट कि आपको रोटेशंस कौन सा परफॉर्म करना है? नाउ आपने पर्टिकुलर नोड इंसर्ट किया है। अगर आपने सपोज देयर इज अ नोड, यहां पे एक कोई तो भी आपका नोड है, ठीक है, एंड यू हैव इंसर्टेड द नोड, इस साइड में आपने नोड इंसर्ट किया है, ठीक है, ऐसा आपका ट्री है, सपोज दिस इज योर ट्री, ठीक है। आपने एक नया नोड इंसर्ट किया है यहाँ पे, एक नया नोड आपने इंसर्ट किया यहाँ पे, यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने नया नोड इंसर्ट किया। ये नोड इंसर्ट कहाँ पे हुआ है? ये ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट चाइल्ड ऐड हुआ, लेफ्ट के लेफ्ट साइड में ऐड हुआ है। दैट मींस यू नीड टू परफॉर्म एलएल रोटेशन, लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन। दैट इज आपने जो नोड इंसर्ट किया, ये नोड आपने इंसर्ट किया है, ये वाला, ये लेफ्ट सब ट्री में लेफ्ट चाइल्ड ऐड हुआ है, सो यू हैव टू परफॉर्म एलएल रोटेशंस, लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशंस, लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन, ठीक है। आफ्टर दैट अभी सपोज आपने ये ट्री में यहाँ पे इस साइड में एक नोड ऐड किया है, इस साइड में नोड ऐड किया है, यहाँ पे नोड ऐड किया है, ठीक है। सो इट मींस दैट आपने जो नोड ऐड किया है वो कहाँ ऐड किया है? ये पर्टिकुलर ट्री के राइट साइड में राइट नोड ऐड किया है, राइट के राइट साइड में ऐड किया है। दैट मींस यू नीड टू परफॉर्म राइट टू राइट रोटेशन, दैट मींस राइट टू राइट, राइट साइड में राइट नोड आपने ऐड किया है, तो राइट टू राइट। So when we perform the rotations, and which rotations we have to perform at what time, okay? Suppose if you have inserted the element on the right subtree as a right child, अगर आपने right subtree में right child को अगर add किया है, so that means you need to perform RR rotation, RR rotations, that is right side में right child अगर आपने add किया, ठीक है, so आपको RR rotations perform करना पड़ेगा। Now suppose left to right rotations कब perform करेंगे हम लोग, ठीक है। Suppose if you have inserted the elements likewise, suppose on this side, मैंने अभी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे सी, सो ये कौन सा रोटेशन होगा फिर? अभी यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड में लेफ्ट सब ट्री में राइट चाइल्ड ऐड किया है, लेफ्ट सब ट्री में हमने राइट साइड ऐड किया है, सो एट दैट टाइम वी नीड टू परफॉर्म अ लेफ्ट टू राइट रोटेशन, ठीक है। आफ्टर दैट सपोज नाउ हियर, अगर सपोज मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड किया, यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे, ठीक है, सो ये कौन सा हुआ? राइट साइड में लेफ्ट चाइल्ड ऐड हुआ है, सो वी नीड टू परफॉर्म अ राइट टू left rotations. So these are the 4 different types of rotations we need to perform. It means that if you have added the if you have added the node on left side left child, so left to left rotation. If you have added or deleted the node from right to right child, right subtree में right child आपने add किया फिर delete किया, that is RR rotation. आपने left to right, that is left subtree में आपने राइट साइड में नोड ऐड किया फिर डिलीट किया, सो यू नीड टू परफॉर्म लेफ्ट टू राइट रोटेशन। सपोज आफ्टर दैट इफ यू हैव परफॉर्म राइट साइड में आपने लेफ्ट नोड ऐड किया, दैट मींस राइट टू लेफ्ट रोटेशन। सो दीज आर द 4 different rotations we need to perform, ठीक है। एंड फॉर दिस 4 different rotations we have a standards, ठीक है। इट मींस दैट these are the different standards given to you here। जैसे यहाँ पे लेफ्ट टू लेफ्ट का, लेफ्ट टू लेफ्ट एलएल रोटेशंस का यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया हुआ, दैट मींस दिस इज अ बिफोर रोटेशन। ये वाला जो ट्री है ये बिफोर रोटेशन इस तरीके से दिखेगा, एंड आफ्टर रोटेशन द ट्री विल बी लाइक दिस। रोटेशन होने के बाद ये आपका इस तरीके से दिखेगा। दैट मींस व्हाट, ये आपको बिफोर रोटेशन एंड आफ्टर रोटेशन से कैसे निकालना है? दिस इज वन एग्जांपल, सी हियर। नाउ सपोज we'll take this simple example. Here is a tree that is 96, 85, 110, 64 and 90. सो आपका मान के चलिए आपका ट्री जो है यहां तक है, ठीक है, आपका ट्री बाय डिफॉल्ट यहां तक है, ठीक है, यहां तक आपका ट्री है। अभी ये ट्री में आपने 36 ऐड कर दिया। सपोज इफ आई आस्क यू इंसर्ट द एलिमेंट 36, आपको 36 ऐड करना है। आपको 36 ऐड करना है तो आप क्या करोगे? पहले 96 से कंपेयर करोगे, 96 से कंपेयर करने के बाद 36 इज स्मॉलर देन 96, तो आप लेफ्ट साइड में गए,
फिर 85 से कंपेयर किया, 85 से भी छोटा है, फिर से लेफ्ट में गए, फिर 64 से कंपेयर किया, 64 से भी छोटा है तो आप लेफ्ट साइड में गए, तो आपने 36 यहाँ पे ऐड कर दिया, आपने 36 यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 36 ऐड कर दिया, 36 ऐड करने के बाद आपको बैलेंस फैक्टर निकालना है, सो यू नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर। पहले 96 का बैलेंस फैक्टर निकालना है। 96 का बैलेंस फैक्टर कितना आएगा, इसका लेफ्ट का हाइट कितना है, यहाँ पे 1 लेवल है, 2 लेवल है एंड 3 लेवल। लेफ्ट का हाइट 3 है, राइट का हाइट कितना है 96 का 1 है, सो 3 माइनस 2, सॉरी 3 माइनस 1 2, सो 96 का बैलेंस फैक्टर कितना हुआ 2 हुआ। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर फॉर 85। 85 का बैलेंस फैक्टर कितना है, सो 85 का लेफ्ट लेंथ कितना है, लेफ्ट हाइट कितना है, सो 85 का लेफ्ट हाइट एक 64 है, यहाँ पे एक 36, दो देयर आर 2 लेवल्स, और 85 का राइट हाइट कितना है 1 है, सो 2 माइनस 1 1, सो 85 का बैलेंस फैक्टर आया 1। सो लाइकवाइज वी नीड टू कैलकुलेट द बैलेंस फैक्टर फॉर ईच एंड एवरी नोड। हर एक नोड का आपको क्या निकालना है, बैलेंस फैक्टर निकालना है। आप ईच एंड एवरी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद, ठीक है, ईच एंड एवरी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पर्टिकुलर ट्री में ऐसे कितने नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर 1 0 माइनस 1 के अलावा कुछ आया है, ठीक है। सो वी हैव अ वन नोड दैट इज 96 जिसका बैलेंस फैक्टर क्या है 2 है, लेकिन हमें बैलेंस फैक्टर जो चाहिए वो क्या चाहिए, सिर्फ 1 0 एंड माइनस 1। वी रिक्वायर्ड ओनली द बैलेंस फैक्टर 1 0 एंड माइनस 1। अगर आपका बैलेंस फैक्टर 1 0 माइनस 1 के अलावा कुछ आता है, इफ यू विल गेट द बैलेंस फैक्टर आउट ऑफ 1 0 एंड माइनस 1, दैट मींस योर ट्री इज इम्बैलेंस। आपका ये वाला ट्री इम्बैलेंस हो गया, ये ट्री आपका क्या है, इम्बैलेंस ट्री है, इम्बैलेंस्ड है ये ट्री, बिकॉज इसमें एक नोड ऐसा है जिसका बैलेंस फैक्टर 2 आया है, और 2 बैलेंस फैक्टर हमें चाहिए क्या, नहीं, वी रिक्वायर्ड ओनली 1 0 एंड माइनस 1, ठीक है। दैट इज दैट ट्री इज इम्बैलेंस। अब ये इम्बैलेंस ट्री को बैलेंस कैसे करते हैं, इम्बैलेंस ट्री को बैलेंस कैसे करेंगे, अभी देखिए आपने नोड जो इंसर्ट किया हुआ है, नोड जो इंसर्ट किया है इसका पोजीशन चेक करिए, नोड कहां पे इंसर्ट हुआ, नोड आपके लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड ऐड हुआ है, यानी 96 का ये लेफ्ट सबट्री है, लेफ्ट सबट्री में लेफ्ट पोजीशन पे आपका नोड ऐड हुआ है। दैट मींस वी नीड टू परफॉर्म लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशंस, वी नीड टू परफॉर्म लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन, हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा। सो लेफ्ट टू लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करने के लिए देखिए बिफोर आपको क्या, आपके ये स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, बिफोर क्या रहेगा, दैट मींस ए क्या है, ए क्या है आपका, दैट इज अ पाइवोट वैल्यू, ए यानी नोड जहां पे आपने नोड इंसर्ट किया हुआ है वहां से नियरेस्ट नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर 1 0 माइनस 1 के अलावा समथिंग कुछ अलग आया हुआ है। इट मींस दैट आप देखिए आपने यहाँ पे नोड इंसर्ट किया हुआ है 36, अभी 36 से आप देखिए नियरेस्ट ऐसा कौन सा नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर 1 0 माइनस 1 के अलावा कोई है, दैट मींस इसके अलावा कोई है, दैट मींस यहाँ पे देखिए 36 से नियरेस्ट कौन सा है 96, 96 ही ऐसा नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर 2 हुआ है, बाकी तो सारे विद इन द रेंज है, 96 ही ऐसा नोड है जिसका बैलेंस फैक्टर 2 आया है। सो ये फिर 96 हमारा क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, ए, जैसे यहाँ पे ये क्या हो ए, इसको हम ए बोलेंगे, ठीक है। फिर ए के लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या होगा हमारा 85 जो है ये हमारा बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। फिर बी के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बी एल है, सो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे पे जो पूरा है ये बी एल है, ये क्या है हमारा, ये पूरा बी एल है, ठीक है। उसके बाद बी के राइट हैंड साइड में ये क्या है, पूरा बी आर है, ये हमारा क्या है, ये पूरा बी आर है, ये हमारा पूरा बी आर है, ये पूरा हमारा बी आर है, ठीक है। फिर ए के राइट हैंड साइड में क्या है ए आर है, सो ये 110 ये वाला जो नोड ये हमारा क्या हुआ ए आर हुआ। सो हमने क्या किया एल एल रोटेशन का बिफोर रोटेशंस वाला जो स्टैंडर्ड्स दिया हुआ उसके अकॉर्डिंगली हमने ये यहाँ पे नॉमिनेशंस दे दिए, ठीक है। सो ये बिफोर रोटेशन ये इस तरीके से ये ए यहाँ पे ये बी है, ये बी एल है, ये बी आर है, ये ए आर है। नाउ वी हैव टू परफॉर्म रोटेशंस, रोटेशंस अभी हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो आफ्टर रोटेशंस क्या होगा, आफ्टर रोटेशंस क्या होगा, ये स्टैंडर्ड्स गिवन है। आफ्टर रोटेशंस क्या होगा कि आपका बी ऊपर आ जाएगा, बी आपका ऊपर जाएगा, दैट मींस यू हैव टू रोटेट, ये जो आपका ट्री है ये स्टैंडर्ड्स गिवन है, सो यू हैव टू रोटेट इन दिस वे, आपको इस तरीके से रोटेट करना है। कैसे रोटेट करना है, इस तरीके से रोटेट आपको करना है, दैट मींस आपको आपको रोटेट कैसे करना है, लेफ्ट टू लेफ्ट, आपको ट्री लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करना है। अगर आपको यहां से इस तरीके से आप क्लॉकवाइज में अगर आपको ये ट्री रोटेट करना है, तो ए आपका नीचे जाएगा, बी आपका ऊपर आ जाएगा, यू हैव टू शिफ्ट बी ओवर हियर, बी आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा ना, दिस स्टैंडर्ड इज गिवन टू यू। सो देखिए आपका बी ऊपर आ गया, ठीक है। सो देखिए बी कहां पे आपका, जैसे से
सो नाउ यू कैन सी हियर, सो दिस इज अ बिफोर रोटेशन, ठीक है, ये जो है आपका ये बिफोर रोटेशन है। अभी आफ्टर रोटेशन क्या होगा, फिर ये वाला आपका बिफोर रोटेशन है, आफ्टर रोटेशन क्या होगा कि बी आपका ऊपर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दैट so now you can see, so this is a this particular tree structure or standard is given for before rotation and after rotation. So before rotations we have made this type of a tree, after that we have to perform a rotation, that is LL rotation, okay. Why we have to perform LL rotations? Because we have inserted the node on left subtree as a left child, okay. So after rotations the tree will be like this, so after rotations B will be here, instead of A B will be here, that means देखिए B 85 था, सो 85 ऊपर आ गया, राइट, ये आपका बी हो गया, दिस वन इज योर बी, ठीक है। आफ्टर दैट बी के यहाँ पे 96 आपका ए था, तो ये आपका ए हो गया। आफ्टर दैट ए के राइट हैंड साइड में आपका ए आर है, सो ए आर आपने यहाँ पे पुट कर दिया, तो हियर इज ए आर, ठीक है, ए आर। आफ्टर दैट इधर आपका फिर बी आर है, सो यहाँ पे देखिए बी आर जो भी होगा यहाँ पे आपने बी आर अटैच कर दिया। यहाँ से ये जो ट्री है यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ आपने नॉमिनेशंस दिए, ए आर, ए एल, बी आर, जो भी आपने दिया हुआ है उस तरीके से आपको क्या करना है, ट्री के जो भी आपका जो सब ट्री वहां पे अटैच करना है, ठीक है। यहाँ पे बी आर हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट बी के लेफ्ट हैंड साइड में बी एल है, तो ये पूरा आपका बी एल था, ये 64 और 36 ये पूरा बी एल, तो ये पूरा आपने बी एल यहाँ पे अटैच कर दिया। सो दिस इज अ एल एल रोटेशन। सो the simple funda is whatever data you have inserted, check the position on which positions you have inserted. On left hand side left subtree left child है, right subtree right child है, left subtree left child है, sorry left subtree right child है, और right subtree left child है। According to that you have to perform the rotation. So and every rotation we have a standard, before rotations क्या होगा और after rotations क्या होगा, ठीक है। So now you can see again this is a standard for RR rotations। ये आपको फिर से एक आर आर रोटेशन का स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आर आर का ये बिफोर रोटेशन है, ये आफ्टर रोटेशन है। सिमिलरली फॉर लेफ्ट टू राइट रोटेशन, ये बिफोर रोटेशन एंड ये आफ्टर रोटेशन। फॉर L to R, that is left to right rotations and right to left rotations, we need to perform two rotations. यहाँ पे आपको two rotations perform करने होते हैं, that's why there is a C. C is one more thing we have added here. So this is a standard. According to the standard, you have to make a tree before rotations and after rotation. So इस तरीके से आपको ट्री बनाना पड़ेगा। After that, when you rotate that tree, your structure will be like this. आपका structure इस तरीके से आना चाहिए। That is, you need to concentrate on the before rotations and the after rotations. Okay. So likewise, we have to perform the rotation. Now, what are the advantages of AVL tree? AVL tree या फिर height balance tree के advantages क्या है? Since AVL tree are a height balance tree, आपका AVL tree आपका height balance tree होता है, so operations like insertion and deletions have a low time complexity. आपका जो time complexity होगा for insertion and for deletion operations, it will take a less time. Okay. Similarly, if you have, we'll see one example. Now, suppose if you have the data values or key values likewise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If you want to construct the binary search tree, अगर आपको इसका binary search tree अगर construct करना है, so tree will be like this. आपका tree आपको इस तरीके से मिलेगा. That means 1 is a root node. Then next is 2 value. 2 को आप 1 के साथ compare करो. 2 is greater than 1, so then right side में आप 2 को add करेंगे. Then next is the 3. So 3 को आप compare करो 1 से बड़ा है, 2 के पास है, 2 से बड़ा है, फिर 3 आपने यहाँ पे insert कर दिया. Then next value is 4. Compare with 1 से बड़ा है, 2 के पास गया, 2 से भी बड़ा है, 3 के पास गया, 3 से भी बड़ा है, फिर यहाँ पे मैंने 4 ऐड कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे फिर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। अगर ये ट्री का हम लोग लेंथ लेवल देखते हैं, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 levels are there. That means the total height of this tree is 6 plus 1, 7. That means total height is 6. Total levels are 6. ठीक है? Now suppose the height of the tree is high and your tree is not balanced. Your tree is not balanced, so it will take a time for insertion, for deletion operation. If you want to insert the particular data into this particular tree, when the height of the tree is very high, so it will take a more time. It will take a more time to reduce the time, for searching operation, for insertion operation, and for deletion operation. The concept of AVL tree is used. Now, अगर यही ट्री का अगर मैं AVL ट्री ड्रॉ करता हूँ, ये ट्री को अगर मैं बैलेंस कर देता हूँ, अगर ये ट्री का अगर आप बैलेंस करते हैं, सो वी विल गेट दिस ट्री।
हमें ट्री जो मिलेगा वो इस टाइप से मिलेगा, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ ट्री। अगर आप ये ट्री को देखते हो और ये वाले ट्री को देखते हो, सो यू कैन सी द डिफरेंसेस। दिस पर्टिकुलर ट्री इज हैविंग द लेवल ओनली 3, ये ट्री का लेवल या फिर डेप्थ ओनली 3 है। अगर ये ट्री का देखते तो लेवल कितना हो गया, 7 हो गया। So that is the differences. ठीक है, that means instead of doing the operations on imbalanced tree, we need to do the operations on balanced tree. So that means the AVL tree. Hope everybody understood the concept of threaded binary tree and AVL tree, how to construct the height balance tree or how to make the imbalanced tree into a balanced tree. Hope everybody got it. So with this, I will stop here. So thank you, one and all. Thank you.